ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے کنٹینیو کرنا. السلام علیکم جی, آر وی ریڈی ٹو گو؟ اننت سار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ انمیوٹ کس کو کریں گے؟ السلام علیکم جی, یہ انٹریکٹیو سیشن ہے کونسلیٹ جنرل آف بارسلونا سے اسپین کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے. میرا نام عمران علی ہے, میں کونسل جنرل ہوں پاکستان کا. اور اس انٹریکٹیو سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک رابطہ ہو سکے حکومت کے نمائندوں کا عوام کے ساتھ, ہمارے ڈائسپورا کے ساتھ, اور مسائل کے علاوہ اگر کوئی اور سوال بھی جنرلی پاکستان سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمیں وہ آتا ہے, اس کا جواب آتا ہے, تو ہم ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. تو لیٹس سی جی, پہلے کویسچنر کون ہے پلیز؟ سر یہاں پہ ایک ایپلیکنٹ ہے جو کہ پاور آف اٹرنی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. پلیز آن کیجیے. اس نے زمین جوائن کیا. سر میں وسیم رزاق صاحب کو انمیوٹ کر رہی ہوں. سر پلیز آپ اپنا مائک آن کر لیں. وسیم اپنا مائک آن کریں, یو آر آن لائن, مائک آن کریں, کویسچن پوچھیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. وسیم کیا حال ہے؟ اچھا, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے عام لوگوں کو. اور اس کو کچھ دن پہلے اس کی تشہیر شروع ہونی چاہیے تھی, ایک بات تو یہ ہے. اور کل ہی میں نے اس کی پوسٹ دیکھی ہے, ہم نے بھی اپنے پیج پہ شیئر کیا تھا, لیکن پھر بھی اچھا یہ ہسپانوی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی گئے ہیں, تو کیا اس دورے کے دوران ڈیول نیشنلٹی کے ایشو پر بات ہو سکتی ہے؟ کیا امکان ہے اس چیز کا یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میرا بائیلیٹرل جو بھی ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے, لیکن یہ دورہ میری رائے پوچھیے تو یہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے, افغانستان کے حالات سے ریلیٹڈ ہے. اسپینش وزیر خارجہ ان 10 وزراء خارجہ میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے, کیونکہ پاکستان ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے اب افغانستان میں حالات کے لیے. بارڈر شیئر کرتے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, اور سب لوگ افغانستان کو پاکستان کے نظریے سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کیا اوپینین ہے. پاکستان ایویکویشن میں انٹرنیشنل کی سینٹرل حیثیت رکھتا ہے. قدرت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کے بارے میں شکوک و شبہات تھے, انہوں نے ہزاروں میں لوگوں کو ایویکویٹ کیا کابل سے پاکستان. اور چونکہ میں اس وقت اس کے آفیشیل آپ کو ورژن سے زیادہ ایک پاکستانی کا ورژن دے رہا ہوں کہ وہی پاکستان جس کو غلط بیانیے کے تحت بلیم کیا جاتا تھا, وہ اب تمام لوگ اصلیت جب آئی ہے, پریکٹیکلٹی آئی ہے, تو پاکستان پہ اپنے شہریوں کی جان اور سب کچھ, اور پاکستان بلا کے وہاں سے ان کو لے جانا چاہتے ہیں, جس کا مطلب ہے جو تمام سراؤنڈنگ سٹیٹس ہیں اس میں پاکستان سے زیادہ اسٹیبلٹی ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ فنکشنل ایک گورنمنٹ ہے, جس فنکشنل گورنمنٹ کو سب استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں سے کئی اور ہمسایہ ممالک ہیں جہاں ایزیلی بارڈر سے لوگ جا سکتے ہیں,
لیکن وہ سب اس سینسٹیو عمل کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دورہ موسٹلی افغانستان بیسڈ ہے. ڈوئل نیشنلٹی پہ بھی بات چل رہی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایک لمبی بائیلیٹرل ڈسکشنز فارن منسٹر سے ایک لمبی میٹنگ تو ہے, اس میں ذکر ضرور ہوگا, لیکن فوکس افغانستان ہے. جی وسیم کوئی اور چیز, ورنہ نیکسٹ آپ اپلیکینٹ کو بلائیں. نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہیں میٹنگ کے. یہ مجھے سر یہ مسٹر ساجد صاحب ہیں, یہ بات کرنا چاہتے ہیں. سر پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے کونسلیٹ کے تمام عملے کو میری طرف سے سلام, اور خاص طور پر سی جی صاحب کو. میں سجاد انور بات کر رہا ہوں یہیدا سے. تو سر میرا ایک کویشچن ہے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ہم پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کریں گے, اور یہ ظاہر ہے دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا کونسلیٹ اور ہماری ایمبیسی جو ہے یہ اسپین میں اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جو تھینک یو. جی شکریہ سجاد صاحب. جب سے ای ویزا کا اجرا ہوا ہے تو یہ پاکستان کا وہ واحد سفارتی ادارہ ہے جو ریکارڈ ٹائم میں ویزاز دے رہے ہیں. ہم افغانستان کے نیشنلز کو اور ان کے دوسرے جو ان کے اسپینش ڈاکیومنٹس بھی رکھتے ہیں, دونوں کو کوئکلی اسیس کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. لیکن یہ تو افغانستان سے ریلیٹڈ ہو گیا. جنرلی 30% ویزا زیادہ اپلائی ہوئے ہیں اس سال میں. اور اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی ہے, اس کے 4-5 ایسے لوگ ہیں جو اسپین سے ٹورسٹ کو اور کیٹالونیا سے ٹورسٹ کو لے کے پاکستان جاتے ہیں, اور ان میں سے جو بھی واپس آیا ہے وہ پاکستان کا اصلی نقشہ جان کے واپس آیا, بہت خوش ہو کے آئے ہیں. تو جو ویزاز ہیں اور جو پاکستان کے 2 بڑے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, جس میں اسپینش لوگوں نے 23 مارچ 2019 میں ہوا تھا اور اب 18 جولائی 2021 کو ہوا ہے, جس میں پاکستان کا نقشہ سامنے رکھا گیا. جتنے بھی اسپینش ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے یہ جو پاکستان کی موسیقی, پاکستان کے سپورٹس, پاکستان کے کرکٹرز, پاکستان کی لڑکیاں, ان کے متعلق ہمیں نالج نہیں تھا, کیونکہ گرینڈ سکیل پہ ہائی لیول کے فنکشنز نہیں ہوتے تھے. تو اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں یہاں بہت تعداد میں آتے ہیں, ٹرک آرٹ دیکھتے ہیں, باقی چیزیں دیکھتے ہیں, تو اللہ کے فضل سے بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. یاد رکھیے یہ پوسٹ کووڈ-19 ورلڈ ہے جس کے اندر ٹریول آسان نہیں ہے, لیکن تب بھی اسپین سے لوگ پاکستان جا رہے ہیں اس کے باوجود. تو آئی تھنک ہم لوگ رائٹ ٹریک پہ ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ڈومیسٹکلی ہونی ہے. ٹورسٹ کو سکون والی اکوموڈیشن, اب اس کو لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی اور فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ پاکستان اس میں بہت ترقی کر رہا ہے. سوات 0 سے سٹارٹ ہوا ہے, کلام وغیرہ 0 سے سٹارٹ ہوا ہے. پاکستان کے اربن سینٹرز جو راولپنڈی, لاہور, کراچی ہیں, فیصل آباد, سیالکوٹ, وہ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں. وہاں سے جب اسپینش ٹورسٹ واپس آتے ہیں تو وہ یوزلی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی چیزوں میں پاکستان کو اسپین سے زیادہ ڈیولپ دیکھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کا جو موبائل انٹرنیٹ ہے, جس کے 3-4 جو لوگ ہیں, وہ آپ کو یورپ کے انٹرنیٹ سے زیادہ فاسٹ ملتا ہے. تو پاکستان کی سٹوری اسی طرح بتائی جاتی ہے. انشاءاللہ اس سال میں جب کووڈ-19 تھوڑا تھمے گا, کم ہوگا, ہم اور آگے جائیں گے. جی پلیز نیکسٹ ایپلیکنٹ کو لیجیے گا, نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو لیجیے گا. ہلو جی بیٹا ساجد صاحب آپ کچھ جی میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا سیکی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہوا. میں یہاں آراگون سے نا ایک میاں بیوی تھے, وہ پولیس میں تھے, ان کو لے کے پاکستان گیا تھا اور انہوں نے انڈیا کا بھی ٹور کیا تھا. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, جو
खूबसूरती पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जो भी काम कर रहे हैं हम दिल की गहराइयों से आपको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपकी चीज़ के जवाब में मैं बताऊँ, पुलिस के बहुत सारे कपल्स और कुलीग्स एक मोटरसाइकिल लेके गए हैं, बलूचिस्तान से एंटर होते हैं और अजीब बात है, बताते हैं कि आपने हमें कहा था कि थोड़ा से मोहताज हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत हमको बलूचिस्तान में मिली है उतनी मोहब्बत हमें कहीं नहीं मिली। तो बहुत ही खुशी की बात है जब एक न्यूट्रल स्पेनिश इंसान पाकिस्तान जाता है और वहाँ के लोगों का गर्विदा होकर आता है। बहुत शुक्रिया। जी एक शाहिदा है। शाहिदा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो फिर प्लीज मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें शाहिदा। ये बेसिकली मिस्टर साकिब है। ओके, मिस्टर साकिब। बोलिए। जी साकिब। ओके सर, शायद वो अनमाइक नहीं कर पा रही, अनम्यूट नहीं कर पा रही। मैं किरण, आप प्लीज आप अपना अनम्यूट करें। चले नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेना। जी किरण प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किरण, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप ये आपको हम फॉर्मली मुबारकबाद नहीं दे सके। आपको बोल न्यूज़ जो कि बहुत रेप्यूटेबल पाकिस्तान का नशरियाती और इदारा है, उसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव बनने पे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये अभी हमारे यहाँ के जो एक्सचेंज मिनिस्टर है वो पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे उनका दौरा है और फिर उनकी अभी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी चल रही है मीटिंग। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और अफगानिस्तान का जो है रेफ्यूजीज और मतलब कितने लोग यहाँ पर अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, और इस पे स्पेन गवर्नमेंट का क्या उनका मौक़िफ़ है? स्पेनिश गवर्नमेंट का, जैसा कि अमूमन इमिग्रेंट्स के साथ एक बहुत शफीकाना होता है, स्टांस होती है, इसी तरह मैंने देखा कि स्पेनिश पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी वरिड हैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से। मैं 4-5 डेलीगेशंस को मिला हूँ जो जा रहे हैं, जर्नलिस्ट के, पार्लियामेंटेरियंस के, जो पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। एक तो उनको मैंने समझाया है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो बहुत कम है। अब वो इस मुगालते पे जा रहे थे कि पाकिस्तान में कोई रेफ्यूजीज का फ्लड हो गया। रेफ्यूजीज का फ्लड पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, ट्रिकल है। कुछ लोग हैं सिर्फ जो शुरू में आपने जहाज़ों वहाज़ों पे देखे, जो तालिबान से जो पहले काम करते थे कोलिशन फोर्सेस के लिए, बाकी वो निकलना चाहते थे, उनको भी रेफ्यूज है। सिवाय एक जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, करंट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, मैं अब उनको तालिबान के नाम से नहीं पुकारूंगा, इट्स द इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो जो आईसिस के रिपोर्टेडली अटैक्स हैं। लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि अफगानिस्तान के आम शहरी का अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के हाथों कोई नुकसान हुआ। कुछ 1-2 प्रोटेस्ट की बातें सामने आई हैं, तो कोई ऐसा मैसिव इन्फ्लक्स नहीं है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को पहले से संभाला हुआ है, और जिनको कभी भी हमने ना सिर्फ उनको हमने इंटीग्रेट किया अपने अपने मुल्क के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गए, वो स्मॉल होटल्स में गए, वो मेहनत मजदूरी के सेक्टर में गए। हमने कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया कि तुम अफ़गानी हो तो तुम काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मोहब्बत वाला रवैया नहीं हो सकता। ये भी ठीक है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया का प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा है या था कि ये बात मिस हो जाती, ऑब्वियस बात मिस हो जाती है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अभी भी जो यहाँ से वीज़ा लेके जाते हैं अफ़गान, उनकी सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में। मुझे कोई दुनिया का मुल्क बताएं जहाँ 3 मिलियन लोगों को सेटल किया गया हो। देयर ऑलमोस्ट सेटल्ड देयर। तो दूसरी बात जो आपका सवाल है वो ये है कि स्पेन में कितने अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है तकरीबन 100 के करीब हैं, लेकिन यहाँ भी
फिक्र बहुत है, क्योंकि उनकी फैमिलीज हैं यहाँ कईयों की, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज यहाँ इमिग्रेट करके आए। एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन नंबर्स ज़्यादा नहीं है यहाँ। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, कोई ऐसी वायलेंस नहीं हो रही अफ़गानिस्तान के अंदर के आम शहरी भागे। तो ये है। मैं शायद एक इवेंट भी 2 हफ्ते में अटेंड कर रहा हूँ जो रेफ्यूजीज से मुतल्लिक है, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन कोई मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज नहीं है अफगान सिचुएशन के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तारिक भट्टी साहब, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। तारिक साहब। तारिक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी तारिक, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और ये है कि सभी जो लोग आपसे डायरेक्टली, जैसे आप तो वैसे भी एक्सेस में हैं सभी के, जब कोई चाहे आपसे रब्ता कर सकता है, लेकिन ये मतलब कोई बंदा अपने घर में बैठ के भी आपसे रब्ता कर सकता है, डायरेक्ट भी बात भी कर सकता है। आई अप्रिशिएट सर। सर सेकेंडली, ये मैडम ने अभी आपसे बात की अफगानिस्तान के हवाले से, इंशाल्लाह हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, आपसे टाइम लिया मैंने संडे को। लेकिन बात एक और ये है कि अफगानियों के हवाले से मुझे वो बात देने में आई कि चंद दिन पहले के अफगानी भाई इधर आए थे और उन्होंने कुछ यहाँ पे कॉन्सुलेट में मामला ऐसे हुए जिसको लोगों ने बहुत हाइप दी, और उसको डिसइंफो के हिसाब से उन्होंने बड़ा फैलाने की कोशिश की गई कि एक तो पाकिस्तानी बेटी के साथ जुल्म हुआ, ये वो। उसके हकायक अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि असल हकायक क्या थे, क्यों इस तरह छोटी छोटी बात को जो हो भी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसको नेगेटिव करके फिर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे लोग भी और कॉन्सुलेट के खिलाफ जो है ना उसको उछालते हैं। इसके हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें तो काइंडली प्लीज। एक तो ये बात है कि ये जो जितनी शहर ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को मोहब्बत दी है, ये बीच में कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर एक, मैंने पहली दफ़ा इसका जवाब इसलिए दिया कि इन्होंने इखलाकी गिरावट की हदें क्रॉस कर ली थी, इसलिए मैंने जवाब दिया, वरना ये जवाब देने लायक नहीं है। हुआ ये कि एक अफ़गान नेशनल है, जब मैं 2018 में आया था तो इनकी फैमिली इश्यूज़ थे, तो मैंने इनको, क्योंकि पेपर वीज़ा कौंसल जनरल के पास होता है, मैंने इनको तमाम कवानीन तोड़ के और अपने स्टाफ की सरजनिश करके इनको फ़ौरन पाकिस्तान भेज दिया, और जितनी हमें मियाद की इजाज़त होती है उससे ज़्यादा की मियाद दी। अब ये 2 साल के बाद दोबारा आए, और चूँकि वीज़ा ऑनलाइन हो चुके हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उस पर भेजनी पड़ती हैं, तो इन्होंने आके नीचे शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी मुझे कौंसल जनरल साहब ने पिछली दफ़ा बगैर किसी कागज़ के वीज़ा दिया है, तो मुझे बगैर किसी कागज़ के वीज़ा दो। मुझे मिले, मैंने कहा देखें, हमने वन एक्सेप्शन मैंने की थी पेपर वीज़ा दे के आपको, अब मैं दे नहीं सकता। अब तो ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कहे दो आपको डॉक्यूमेंट्स कहें वो आप अपलोड कर दें, आसान तरीन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उन्होंने 3 दफ़ा, चूँकि मैं अफ़गानिस्तान को, अफ़गान भाइयों को अपना भाई बहन समझता हूँ, 3 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए, और तीनों दफ़ा उनका बिहेवियर बहुत एंटी पाकिस्तान और बहुत रूडनेस की एक्सट्रीम उन्होंने, मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, डिस्प्ले की, और वो 2 कागज़ अपलोड नहीं किए। उसके अलावा वो चूँकि बार बार आते थे, तो उन्होंने एक ऐसी बहन की और एक हमारी स्टाफ ऑफिसर की नकली वीडियो बनाई। हमारी बहन जो थी उनको लास्ट ईयर, ऑफिसर इफ यू आर हियरिंग मी, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट एप्लीकेंट? सर उमाइजा। उमाइजा, क्योंकि मैं लगी लिपटी बातें नहीं करना चाहते इसलिए नाम लेके बात कर रहा हूँ। उमाइजा ने को जब वो लास्ट ईयर तशरीफ लाई थी, तो मैंने तमाम कवानीन तोड़ के, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि मुझे कितना लॉ बेंड करना पड़ा, मैंने उनके नौज़ायदा बच्चे को पासपोर्ट दिया था। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग जिनके साथ सबसे ज़्यादा फेवर होती है, वो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस रेज हो जाती हैं। इस दफ़ा वो आई, वो कहती हैं कॉन्सुलेट से मुझे लेटर दे दो कि मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। भाई, डिवोर्स का पाकिस्तान की यूनियन काउंसिल में एक प्रोसीजर है। मैं जितना भी फराख दिल हो जाऊँ, मैं लोगों की तलाक़ें नहीं करा सकता अपने कलम से। तो वो बैठ रही थी, उनको समझाया जा रहा था तो वीडियो बना ली।
वीडियो वहाँ ये यहाँ एक शैतानी टोला है इसमें बार्सिलोना में, जिनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए ख़राब हो गई कि उनको कुछ और नहीं आता सवाए चीज़ों के। उन्होंने, उनमें से नुमान साहब हैं, उन्होंने वो वीडियो रीलोड की और इन्होंने मक्कारी से घनौना नैरेटिव ये पेश किया कि जैसे वो वीडियो कॉन्सुलेट के स्टाफ ने बनाई है। उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। मैंने कश्मीर के फंक्शन में भी कहा था कि एक वो अजीम मुजाहिद था जो इंडिया की संगीनों में पाकिस्तान की बात करता था, और एक ये लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो साहब हैं पता नहीं किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी बातें की, और जो मेरे मुल्क के बारे में बातें करेगा उसको कम से कम इस कॉन्सुलेट से कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये उसकी चीज़ें पकड़ के, उसकी वीडियो लेके जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, उसको इनका दरीना एक पुरानी एक फ्रस्ट्रेशन या वेट ड्रीम है इनका, जो बार्सिलोनीता से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। मैं बाकी कैरेक्टर्स के नाम नहीं लेना चाहता, उनके खिलाफ वीडियो टेस्टिमनीज रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हैं, जिन्होंने उस वक्त से ही शुरू किया, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट बेस्ट टारगेट ये है कि कॉन्सुलेट के फीमेल स्टाफ को अटैक किया जाए। इंतहाई घिनौनी हरकत है, एंड इट हैज स्टार्टेड 1 year ago. स्पेनिश अथॉरिटीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड। कई चीज़ें जो मैं नहीं उनसे शेयर करता था, इन शैतानी हरकतों के बाद we will discuss with them. There are meetings coming up at law enforcement, और ये जितने लोग शैतानी नैरेटिव, जो सबसे बड़ी बात है जो झूठ पे बेस्ड है। अभी इससे पहले वसीम रजाक साहब थे, आपने कई दफ़ा, और हमारे सहाफ़ी बरादरी है, उन्होंने कॉन्सुलेट के में इम्प्रूवमेंट की रियल चीज़ें बताई कि जी आप इसको इस तरह इम्प्रूव कर लें। हमने हर उस चीज़ को लबैक का कभी उस पर इशू नहीं किया, और हमने कॉन्सुलेट को इम्प्रूव करके दुनिया का, मेरा ख्याल है ये दुनिया का सबसे अच्छा सिफारती इदारा है, हमने ये बना दिया। लेकिन इसके साथ तो ये बात थी, फिर उसको यूट्यूब पे भी पोस्ट करवा दिया, और यूट्यूब पे किसी इडियट पोस्ट पे कमेंट कर रहा है कि ये जी कॉन्सुलेट वीडियोस नहीं बनाता किसी की, ये वो शैतानी ज़हन था। और इनकी सारी थ्योरी इसलिए गलत प्रूव हो गई कि जो उसकी टिकटॉक वीडियो है उसके ऊपर उस अफगानी नेशनल का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें हमें बिल्कुल बॉदर नहीं करती तारिक, हम आगे रवां दवां इसको अच्छे से अच्छा बनाने पे। और जब आप इन माफियाज का जोर तोड़ते हैं जो कभी किसी नेशनल इशू के नाम पे झूठ बोलते हैं, इनकी मैं आपको एक और हरकत बताऊं। इन्होंने एक दफ़ा ये तारागोना के अंदर इन्होंने एक वो दुरम की वो डोनर कबाब की दुकान होती है, उस पर 7 बंदे जमा करके, इनके वो जो रूह रवां हैं जो ब्रसल से तशरीफ़ लाते हैं, और पाकिस्तान में उनके बारे में मैं इसलिए बात नहीं करूँगा कि अगर मैंने बात की तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। वो आके वहाँ डोनर कबाब पे 10 बंदों को बुलाते हैं और कहते हैं कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद जो मैसिव पाक फेडरेशन के तहत जो जलसा हुआ था कश्मीर का और पैलेस्टाइन के ऊपर, जो जिसमें मैं गया था, उसमें ये लोग चढ़ के, इनका वो होता है कि किसी और का फंक्शन कैप्चर कर लें और तस्वीरें आगे भिजवा दें कि हमने 10-12 लोगों ने एहतजाज किया, ये किया, वो किया। इन लोगों के मुतालिक लास्ट चीज़ जो लॉर्ड नज़ीर की वीडियो है, और लॉर्ड नज़ीर ने जो क्रिमिनल कंटेंट इन लोगों का बताया है, क्रिमिनल इंटेंट बताई है इनके लीडर की और बाकियों की, मेरा ख्याल है लॉर्ड नज़ीर से ज़्यादा कश्मीर और पैलेस्टाइन के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो यहाँ मैं रुक जाता हूँ। इसके बाद कुछ हुआ तो मुझे कतन कोई खौफ या डिप्लोमेसी नहीं है इनको एक्सपोज करने की, इनके एक एक इंसान को एक्सपोज करने की, किसने कितनी जेल काटी, कौन कहाँ क्रिमिनल है, किस पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े। तो मैं सिर्फ खामोश हूँ। लेकिन जब ये बहनों की, बेटियों की चादर और चार दीवारी पामाल करेंगे तो देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड आई माई सेल्फ, देन वील गो आफ्टर देम। जी तारिक शायद चले गए। नेक्स्ट तारिक, कोई सवाल आपने तारिक कॉल करना है प्लीज। तारिक साहब माइक अनम्यूट करें प्लीज।
जी जी प्लीज. ना किसी की आवाज शायद आनी चाहिए, नहीं आ रही, कोई बोल रहा है? नहीं सर, कोई भी नहीं बोल रहा. तारिक भाई की शायद तस्वीर नजर आ रही है. हेलो, जी अस्सलाम जी. वालेकुम. सर आवाज आ रही है? ये आवाज क्लियर नहीं आ हेलो रही. सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ तारिक आ रही है, थोड़ी कट हेलो. आ रही है, प्लीज बताइए. जी जी आपको जी सर, मैं शायद कुछ सुन रहा. सर मकसद ये नहीं था इस बात को, मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये नहीं था कि कोई ऐसे मामला तो उसको दोबारा रिपीट किया जाए. मकसद ये था कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचने चाहिए. जो यहाँ के लोग हैं जो तारिक आवाज कट रही है आपकी, किसी कनेक्शन प्रॉब्लम की. मेरा भी मकसद ये है कि मैं इस शहर के लोगों को हकीकत बताऊं, क्योंकि उन तक ये तो बात पहुंचनी चाहिए थी गलती कहाँ पे है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा. जी जी थैंक यू वेरी मच. जी Thank you. प्लीज नेक्स्ट Sorry. पार्टिसिपेंट को ऑनलाइन करें. मनाल है. मनाल, मैं आपका कैमरा, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ प्लीज. Yes, sure. Assalamu alaikum, sir. I hope you're doing well. I would like to say कि मुझे यहाँ पर स्पेन में काफ़ी सारे साल हो गए, almost 10 years, more than 10 years. और currently I'm working in a company Web Help. मैं टीम मैनेजर हूँ वहाँ पर, और काफ़ी सालों से कॉन्सुलेट में आना भी हो रहा है. और रिसेंटली अभी मैं अपने फादर के साथ आई थी कुछ डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने, तो बहुत अच्छी सर्विस मिली. एंड वी एक्चुअली फेल्ट द डिफरेंस. जो पास्ट ईयर्स में एक्सपीरियंसेस रहे और जो अब एक्सपीरियंस रहा, इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव. और सर आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो माय क्वेश्चन इज अबाउट ड्यूअल नेशनलिटीज. एज वी नो कि करंटली पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनलिटी होल्ड नहीं कर सकते, तो इज देयर एनी अपडेट के अप्रॉक्स कितना अरसा इसको लगेगा कि हम ड्यूअल नेशनलिटी रख सकेंगे? एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपने, इट्स गुड टू नो कि आपको अच्छी सर्विसेज मिली. ये सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं है कॉन्सुलेट. पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट होता है और पाकिस्तान का जो कॉन्सुल जनरल होता है, वो कम्युनिटी की सोशल लाइफ, उसकी पॉलिटिकल लाइफ, कम्युनिटी की उसकी पहुंच और उसकी एक ओवरऑल कम्प्लेक्शन का भी निगहबान होता है. बहुत मुश्किल से, पता नहीं आपने फॉलो किए कि नहीं, 2019 का मेगा इवेंट था जो रामला पे हुआ था, और ये वाला भी एट अ वेरी बिग एक्सपेंस इट वाज डन इन एन ऑडियो विजुअल सेटिंग. क्यों? सड़क पे भी तो कर सकते थे मुफ्त में. इसलिए किया कि आपके जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रोफाइल है, हमारी बच्चियां, वन ऑफ देम इज यू, दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क. लेकिन यहाँ के कुछ नाम लिहाज लीडर्स और कुछ यहाँ के सहाफ़ियों की वजह से, जिस दिन से मैं आया हूँ मुझे पता चला कि सर हम आपसे मिल सकते हैं, लेकिन हम किसी कम्युनिटी की गैदरिंग में नहीं जाएंगे. तो ये इन बड़े फंक्शंस का मकसद ये होता है कि स्पेनिश डिग्निटरीज आएँ, वो पाकिस्तान का रियल इमेज जाने, जो कि गन्स, टैंक्स और मिसाइल्स नहीं है. पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की धरती बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में बताना और आप जैसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराना. मैं आपके इस क्वेश्चन के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि हमारा अगला मेगा इवेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को हो रहा है. और इस इवेंट में वी आर शोकेसिंग द पाकिस्तानी फीमेल इन स्पेन. दैट्स द टॉपिक. तो जिस तरह आप एक बहुत ऑनरेबल और ऊंची का लफ्ज नहीं, बहुत डायनामिक जॉब कर रहे हैं. इट्स गुड टू सी अ टीम लीडर. वी वांट यू टू बी देयर. वी विल रिकॉग्नाइज यू एंड वी विल ऑनर यू. पाकिस्तान की बेटी को यहाँ ऑनर होना चाहिए इन दिस कंट्री. तो उसके लिए वो इवेंट है, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा. डुअल नेशनैलिटी की जहाँ तक बात है, मुझे एम्बेसडर साहब इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की एम्बेसी जो टीम है, उमैर, आयजा, बाकी
मीटिंग्स हो चुकी हैं, सोशलिस्ट पार्टी से भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तमाम मस्करा रिपब्लिकाना सुइतेदानोस सब लोग इसमें एक्टिव हैं हमारी कम्युनिटी के. लेकिन इट सीम्स लाइक कि हमारा जो सर्कल है वो 2023 में आएगा डुअल नेशनैलिटी का. तो इट सीम्स, मैं कंक्रीट बात नहीं करना चाहता, मुस्तकबिल किसी ने नहीं देखा, लेकिन 2023 में प्रॉब्ली चांस है. तो उसकी वजह यह है कि स्पेन एक ख़ास कंसेंट्रिक सर्कल्स के तहत जाता है, पहले जिनके साथ लैंग्वेज की हो, फिर जिनकी कम्युनिटी हो. एक बहुत बड़ा मसला, और आपके क्वेश्चन की वजह से मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मसला ये कि हमारी एक एसोसिएशन नहीं है स्पेन की. अगर हमारी एक बिजनेस एसोसिएशन या एक पॉलिटिकल एसोसिएशन हो, बिजनेस एसोसिएशन के लिए कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ट्राई कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ. अगर एक एसोसिएशन हो तो उससे 2 मसले हल हो सकते हैं. उसका अगर लेवल रेज हो, उसके अंदर स्पेनिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स लाइक यू, आप लोग हों, द फ्रेश फेस ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर हो, तो दे कैन एट अ हायर लेवल मीट द स्पेनिश अथॉरिटीज. एंड इफ दे हैव द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीइंग वन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी. याद रखिए, डुअल नेशनैलिटी स्पेन में जब स्पेनिश अथॉरिटीज को पता चलेगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतहद होके इस बड़े इशू के लिए गामजन है, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी. इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम थोड़े से डिवाइडेड हैं. वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन, और इतना मुश्किल नहीं है. सो जो ईयर आपने जो क्वेश्चन पूछा वो इट सीम्स अराउंड 2023. Thank you so much for the appreciation, and thank you so much for your response, sir. You have to remember 31st October, 12 o'clock in Poblano, the same hall. Kindly contact the consulate with your CV and other things. We want Pakistani girls like you to be brought to the Spanish audience. Okay, look, we are not a male-dominated patriarchal society anymore. Our girls work, they work well. They are important members of the Spanish society. और इसमें हमारे 50-60 PhD स्कॉलर्स भी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, और गर्ल क्रिकेटर्स भी शामिल होंगी जिनको अब तक इस कम्युनिटी के दकियानूसी किस्म के ख्यालात ने. कम्युनिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी कुछ उनके लीडर्स कुछ ऐसे हैं जो फीमेल्स को लाइमलाइट में नहीं आने देते. तो कॉन्सुलेट का ट्रेडिशनल ये जॉब नहीं है, लेकिन आई हैव फेल्ट दैट सो ग्रेट इज द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन स्पेन, एंड आवर न्यू एम्बेसडर, he also feels the same, that it has to be brought forward to a Spanish audience. अगर आप 30 लोगों का किसी रामले पे जाके जहाँ शोर मचा हुआ हो, वहाँ धमाके करके आप करें, इवेंट करें, hardly anyone comes except the same people. So you have to bring it, you have to bring media in it, it has to be telecast, broadcast, brought to the world. जो इस दफा का स्पेनिश और फ्लेमेंको डांस हुआ था, it really फ्लेमेंको और कथक, उसने तमाम दुनिया की आंखें खोली थी कि कथक is so modern. तो ये so please don't, we need great people like you and other female colleagues, like-minded, like-working females, who we can showcase and tell the Spanish people that our females are indeed great. And one testimony to this is कि ये consulate एक female dominated consulate है. यहाँ किसी भी पाकिस्तान के दायरे से ज़्यादा females काम करती हैं, और उसकी वजह से opposition का भी सामना है. लेकिन अगर आप हर opposition से घबरा जाएंगे तो आप पाकिस्तान की प्रोफाइल कैसे रेज करेंगे? फिर तो आप उसी गड्ढे में बैठे रहेंगे जिससे आप निकल नहीं सकते. Definitely. Inshallah, I'll surely be there on that event. Wonderful. Thank you, Manal. हमारे साथ अंदलीब है. मैं अंदलीब आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज. Thank you, Amina. Assalamu alaikum, sir. Hope you're doing well, inshallah. सबसे पहले तो सर थैंक यू, इतनी ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी का 1-to-1 जो उनके प्रॉब्लम्स है सुनने का,
माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक कदम है और इंशाल्लाह इससे कम्युनिटी के बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। मेरी बल्कि एक क्वेश्चन था और एक आपके लिए रिक्वेस्ट थी कि जो आपने यंगस्टर्स को जो आप सामने लाए हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसको इसी तरह जारी रखा जाए, क्योंकि उससे एक तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और दूसरा यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग बच्चे काम कर रहे होते हैं वो स्पेनिश लोगों के सामने भी आते हैं और पाकिस्तान का, जैसे कि अभी आप कह रहे थे, उसका रियल फेस जो है वो यहाँ की कम्युनिटी के सामने आता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आप जब से आए हैं कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से काम हो रहा है और यहाँ पे सारी कम्युनिटी के साथ मिलकर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि किस हद तक यहाँ के लोगों पे या इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल जितनी भी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे इन प्रोटेस्ट का या जितनी भी वॉइसेस रेज की जाती हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा? थैंक यू। जी बिल्कुल अली, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि मिनहाजुल कुरान जिस तरह स्पेनिश लोगों को इंटीग्रेट करता है पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ, वो मिनहाज और 2-3 इदारे उसके लिए उनको खराज तहसीन उनको। जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर के अगर आप 10-12 बंदों का किसी इंडिया के नेशनल डे पे जमा करके मोदी साहब को या उनके प्राइम मिनिस्टर को अगर आप गालियां दे दें, उससे कश्मीर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कश्मीर उस वक्त रिकग्नाइज होगा जब इनके आप सेंटर्स में जाके, जिस तरह प्लाजा कैटलोनिया है या कोई और जगह है, वहाँ आप नंबर्स दिखाएं। जब तक आप नंबर्स नहीं दिखाएंगे और आप इनोवेशन के साथ कश्मीर कॉज को नहीं रेस करेंगे, पता नहीं आप मौजूद थी कि नहीं जब पैलेस्टीनियन यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था। देखिए उस प्रोटेस्ट से एकदम फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन तमाम यूरोप ने देखा कि पैलेस्टाइन का दूसरा चेहरा क्या है। दे आर प्रोटेस्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी। एक प्लान है अबाउट अ नाइट इवेंट इन प्लाजा। यू विल हैव टू डू थिंग्स जिसमें गालियां देने की बजाय आप कश्मीर की विक्टिमाइजेशन हो रही है उसको यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन तरीके से दिखाएं। आप प्रोटेस्ट इनोवेटिव करें। गला फाड़ फाड़ के ऐसी ज़बान में बोलने से जो किसी को समझ नहीं आती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक फेस प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए काम हो रहा है, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम की तवस्सुत से कहना पड़ेगा कि ऑल्दो नंबर्स 10, 15, 20 से हज़ारों में 3 इवेंट्स में गए हैं, जिसमें कॉन्सुलेट शामिल था, किस में बिहाइंड द सीन्स, कुछ में फ्रंट। और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी का और निदाए कश्मीर का और बाकी एसोसिएशंस का, फेडरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने साथ दिया। लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। हमें 1,000 लोग जमा करने पड़ेंगे और पीसफुल तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, स्पेनिश ज़बान में हमें ये मैसेज देना पड़ेगा, प्रॉब्ली विद लाइट्स, विद अदर थिंग्स। और इसमें मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमने क्वांटम लीप्स लिए हैं जब से कम अज़ कम मैं यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है पहले भी होता होगा, लेकिन इतनी तादाद में लोग नहीं आते थे। हम आगे भी यही इसी राह पे गामज़न रहेंगे और इसको ज़्यादा इनोवेटिव करेंगे। फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी आदत है कि मैं स्ट्रेट बात करता हूँ और नाम लेके करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान के मेरा ख्याल है पहले इलेक्टेड काउंसलर थे जो कैटलोनिया के रिमोट एरिया से, एक रूरल सोसाइटी से इलेक्ट हुए थे। वो रीजनली ही फेवर्स डिफरेंट सोल्यूशन टू स्पेन, जो कि मेरे लिए कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान बिलीव्स इन वन स्पेन एंड पाकिस्तान बिलीव्स इन वन स्पेन की तरक्की में, लेकिन कम्युनिटी के हिसाब से वो हमारे एक रहनुमा थे। आपको पता है कि मैं उनसे इंटरेक्ट करने गया, वहाँ
स्पेन के वहाँ कश्मीर के लिए उस रूरल कैटलोनिया के विलेज की काउंसिल में एक भरपूर जलसा हुआ, उनकी ज़बान में ट्रांसलेट हुआ और मैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थे उसके जगह गया, मिला उनसे जाके, स्टिल बिलीविंग इन वन स्पेन। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन का ये लेटर लिखा गया to the European Commission on Indian violation of human rights, which was a victory, उसमें 5 स्पेन के लोग थे, 5 स्पेन के लेजिस्लेटर्स थे। उसमें से 3 का ताल्लुक हमारे उस इंटरेक्शन से था जो तारिक साहब के साथ था, और तारिक साहब की हुब्बुल वतनी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के लीडर्स को उस खत का हिस्सा बनाया। इसके अलावा भी 2 स्पेन के थे, तो स्पेन ने भरपूर पार्टिसिपेशन की है ऑन द कश्मीर पॉज। दे नो अबाउट द कश्मीर पॉज, और हम करेंगे और आगे बताएंगे कि कश्मीर जमीन का खित्ता नहीं है। जितनी दफा आप उसको जमीन का खित्ता बनाएंगे, आपको स्पेन में ऑडियंस आपको कंफ्यूज लगेगा बिकॉज ऑफ द कैटलोनिया इशू। आपको ये बताना है कि कश्मीर is a place where innocent humans are being deprived of their rights, and that's it. तो तब आपकी बात सुनी जाएगी। Already there are 5 votes from Spain. So आपकी efforts, मेरी efforts, आपकी leadership की efforts, पाकिस्तान की community के top leaders की efforts, वो बड़ी रंग लाई हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि बड़ी विक्ट्री थी जब सब पार्टीज के लोगों ने, एक दफ़ा ओरियल ओमरोस ने, एक दफ़ा सुजाना बेल्ट्रान ने सिudadanos की तरफ से, और फिर सोशलिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग्स में कश्मीर के कॉज को उन्होंने रिकग्नाइज किया है, और EU डिसन फॉर लैब्स पे उनको ब्रीफ किया गया है। तो इन चीज़ों के नतायज निकले आएंगे। कम्युनिटी और कॉन्सुलेट को एक होना चाहिए। जब वो एक पेज पे होंगे तो कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। मुझे 1-2 एप्लीकेंट्स कार्स में नजर आ रहे हैं, प्लीज उनको लीजिए। सर हमारे साथ हिबा है, हिबा का कोई एक प्रॉब्लम है, वो आपसे शेयर करना चाहती हैं। हिबा प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। उसके बाद काइंडली जो कार्स में लोग हैं वो बेचारे ट्रैफिक में खड़े हैं, उनको प्लीज लें, उनका वक्त पहले बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? अच्छा, मैं असल में I'm an architect by profession. I came from Pakistan to Spain on a holiday. Have you heard 1st October function? नहीं, अभी पहले एक आपकी कुलीग, आपकी तरह से प्रोफेशनल कुलीग, आप आर्किटेक्ट हैं, वेल डन फॉर अ पाकिस्तानी लेडी। तो वी आर हैविंग एन इवेंट टू शोकेस पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म इन पाकिस्तानी फीमेल्स on the 31st of October. Sorry to cut you off. आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम बताइए। सर वो एक्चुअली टूरिज्म पे आई हुई हैं शायद इधर। हिबा अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था गलती से। अच्छा, मैं असल में मेरा तो स्टे बहुत शॉर्ट था। आई वांटेड टू स्टे फॉर 15 डेज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मेरी फ्लाइट थी बट आई कुडंट टेक इट। मुझे रीस्केड्यूल करनी पड़ेगी अब अपनी फ्लाइट वापस जाने के लिए। तो प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास इस वक्त कोई रहने के लिए जगह नहीं थी। तो दैट्स व्हाई आई कांटेक्टेड द कॉन्सुलेट, आई वाज कांटेक्टिंग द एम्बेसी कि कोई हेल्प हो सकती है इस रिगार्ड में, मेरी अकोमोडेशन या कोई जगह मिल सकती है रहने के लिए। अकोमोडेशन का आई एम श्योर पाकिस्तानी कम्युनिटी सुन रही है, एंड आई एम श्योर they will find you a place. कॉन्सुलेट और एम्बेसी के पास अकोमोडेशन की जगह नहीं होती, लेकिन क्योंकि नहीं, also because I've suspected that it could be I could have COVID. तो उस सिनेरियो में मैंने जितनी भी हेल्पलाइंस पर कॉल की है, उन्होंने कहा कि यू हैव टू कांटेक्ट योर कॉन्सुलेट और एम्बेसी। एम्बेसी से बात की है तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्सुलेट से बात करें, क्योंकि मैं बार्सिलोना में हूँ इस वक्त। हम इस वक्त को आगे नहीं जाने देंगे। We'll take your responsibility. आप सबसे पहले एंटीजन टेस्ट या शॉर्ट टेस्ट करवाएं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट द कॉन्सुलेट। हेल्पलाइन वेबसाइट पे है, व्हाट्सएप नंबर्स हैं। We'll help you in one way, or we can provide you accommodation. That's fine. If we can't do that, provide you assistance, whatever. Yes.
And rest assured, you're not alone. Get a COVID test from somewhere. The staff can guide you. आप काइंडली जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर अपना अपना टेलीफोन नंबर, यहाँ जो स्टाफ हैं आमना तज़ीम ज़रीन बैठी हैं उनको दें. Sir, she is already in contact with me. मैं उनके पास मेरा नंबर है. अच्छा, आपका नाम आमना है जिनसे मेरी बात हो रही है? जी. अच्छा, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. बस यही मेरा तो सिर्फ यही क्वेश्चन था, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी हियर इन अक्टूबर. आई हैव टू फ्लाई बैक फॉर वर्क. तो लेकिन चलें, थैंक्स सो मच, अच्छा लगा आपसे मुलाकात. ओके. ये कोई मिस्टर काजिया, मैं इनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ सर. साजिद साहब हैं ये. जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इकराम काजी बतौरिया बिलवाओ से काजी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ. तो पहले तो सर ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो एरिया ये मैड्रिड में आता है, तो आप कॉन्सुलेट वाले बार्सिलोना की तरफ से जो हमें तावन मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है ना, उसकी वजह से हम 2 घंटे ज्यादा सफर करके कॉन्सुलेट बार्सिलोना में आना पसंद करते हैं. और एक तो वहाँ हमारे मसले को बड़ा इजी सुना जाता है, बड़े आराम से सुना जाता है और क्लियर किया जाता है. दूसरी बात जो सबसे बढ़िया सर हमारे लिए, आपको और आपका जितना भी अमला काम कर रहा है, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे और काम करने की तौफीक दे. हमारे कोरोना के दौरान तकरीबन इधर से 3 बॉडियां थी जो पाकिस्तान बार्सिलोना कॉन्सुलेट की तरफ से पाकिस्तान भेजी गई हैं, और तकरीबन 10 दिन में वो भेजी गई और बहुत अच्छा तावन किया, जिसमें मैडम तज़ीम थी. आपने हमें नंबर दिया था, आप शायद मुल्क से बाहर थे तो आपने मुझे नंबर दिया था. तो सर एक सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगले दिन भी मेरा आपसे राब्ता हो रहा था, और भी एक हम बिलबाओ, विक्टोरिया और लोग्रोनियो से मैड्रिड हमें नजदीक है, इसमें कोई शक नहीं है. बार्सिलोना हमसे 2 घंटे या 1.5 घंटा ज्यादा लगता है, लेकिन हम कॉन्सुलेट की तरफ या कॉन्सुलेट में आना इसलिए पसंद करते हैं, जो बिना पेपरों के लोग या बुजुर्ग है जो अनपढ़ है, उनसे इशफाक साहब है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो तो ऐसे डील करते हैं जैसे समझ ही नहीं आती, हमें इतनी इज्जत दे देते, अल्लाह ताला उनको खुश रखे. सर हम 2 घंटे ज्यादा सफर इसलिए करते हैं सिर्फ इस इज्जत के लिए, और कि हमें अपने काम कराने में आसानी हो जाती है. तो कई दफा हमसे सवाल किया जाता है कि आप मैड्रिड क्यों नहीं जाते, तो क्या कानूनी तौर पे कोई वजह है कि हमें मैड्रिड जाना जरूरी है और कॉन्सुलेट में आना नहीं जरूरी? जी, जो कॉन्सुलर ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं ना, जो कानून की हैं, उसके हिसाब से आपसे मैड्रिड डील कर सकता है. कानून के हिसाब से बार्सिलोना कॉन्सुलेट डील नहीं कर सकता. लेकिन चूंकि हमने पहले दिन से 2-2.5 साल हो गए, हमने कहा कोई भी पाकिस्तानी हमारे दरवाजे पे आएगा तो हम उसको ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज की वजह से वापस नहीं भेजेंगे. तो लीगली आपका मैड्रिड बनता है. मैड्रिड में बहुत चेंजेस आई हैं. आप मैड्रिड में सीता भी नहीं चाहिए, और मैड्रिड में अब आप देखेंगे वहाँ बड़ी चेंजेस हैं. वहाँ ऑफिसर्स भी हैं, आप जाएंगे वहाँ भी नहीं होगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, बार्सिलोना भी आपके लिए खुला है. पामा मयोर्का और पामा मेनोर्का दोनों मैड्रिड के अंदर आते हैं, लेकिन कई दफ़ा मजबूरी के तहत दोस्तों के घर यहाँ होते हैं. इसी तरह हमारे बार्सिलोना के लोग अगर मैड्रिड जाते हैं तो हमारे 2 मिशंस के अंदर इतनी कोऑर्डिनेशन और इतना खुलापन है. एम्बेसडर साहब इज़ अ वेरी नाइस अफेक्शनेट पर्सन. वहाँ भी MRP में और पॉलिटिकल ऑफिसर्स में आयज़ा उमैर, और वहाँ का भी जो एक वहाँ मैड्रिड में एक चौकीदार हैं, उनके पास लोग रात को एम्बेसी खुलवा के उनके ग्राउंड में जाके जल्दी वक्त गुजारते हैं. तो वहाँ भी अच्छा है. लेकिन जो आपको बेहतर फील हो, एक बात है, लेकिन मैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है यहाँ बार्सिलोना की ज्यूरिसडिक्शन में, मैं उनका हक नहीं मार सकता. मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, आप अपॉइंटमेंट लेके आएं, बस दैट्स ऑल. जी प्लीज, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लें. शेख खुरम साहब, मैं प्लीज मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ. जी खुरम भाई.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खुर्रम। सर एक तो आपको बताना था, ये प्रॉब्लम जो ज़्यादा आ रही है वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लीगलाइज करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं मानते, और जो बाज़ दफ़ा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान से जो फॉरेन अफेयर से हम टेस्ट करवा के लेके आए हैं वो यहाँ पर आप नहीं मानते। फॉरेन टेस्ट किया हुआ कैसे हो सकता है बेटे? आपको जरूर इंसिडेंट हुआ लोगों ने क्यों जी नहीं एक दफ़ा सर एक दफ़ा सर हुआ था इस तरह के, वहाँ से मैं अटेस्ट करवा के लेके आया बजाते खुद ना, लाइन में खड़ा, मतलब काफ़ी पूरा दिन ज़ाया करके मैं गया हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पर फिर मैंने वो अटेस्ट करवा के नेशनलिटी के लिए जमा करवाने थे पेपर, तो यहाँ पर आया तो वो आपके पास एक लिस्ट थी, वो कहते हैं कि इस लिस्ट में जिस बंदे ने अटेस्ट किया वो हमारी लिस्ट में नहीं है। इसको मैं कॉन्सुलर सेक्शन के हेड और बाकी जो हमारा कॉन्सुलेट का स्टाफ है वो प्लीज स्टडी करें, देखें किस ऑफिसर का नाम था जो लिस्ट में नहीं था जिसको ये टेस्ट करवा के। आप अपना आप अपना टेलीफोन नंबर काइंडली डैशबोर्ड पे हमारी ऑफिसर को दें, हम आपसे बात करेंगे और मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि कौन से ऐसे ऑफिसर का नाम था जो नहीं था और ये इंसिडेंट क्या हुआ है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड मैड्रिड में और बार्सिलोना में अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डेजिग्नेटेड लोग होते हैं वो टेस्ट हम बात, और आप जैसे ही कॉन्सुलेट के अंदर आएंगे तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आप प्लीज टेक्स्ट करें और उस वक्त तक ना जाएं जब तक ये इशू सॉल्व ना हो। तो लेट्स लुक सॉरी जी बेटे। जी वो इशू तो तकरीबन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये किसी और के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये इशू फिर हल हो गया था इस तरह से कि फिर डॉक्यूमेंट्स मैंने वापस भेजे और वो जो फिर दोबारा से वो टेस्ट मैंने करवाए थे और वो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था। लेकिन अब जो रिसेंटली अब जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने पिछले दिनों तकरीबन 20-25 दिन यहाँ से बनवाई है, तो आपसे एम्बेसी से उसको लीगलाइज करा के उसकी 2 कापीज, एक आपके पास और एक मैड्रिड कहाँ से करवाई है? नहीं बार्सिलोना में जी, मैं साथ कुगात में ही रहता हूँ मेरे एक सेकंड, काइंडली माय स्टाफ लुक इनटू, इनसे कांटेक्ट करें, इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी देखें, इनको QR कोड भेजें जो अपलोड हुआ होगा ताकि इनको मिनिस्ट्री में तकलीफ ना हो। 20-22 दिन 25 दिन लगते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचने में, लेकिन देखिए ऑनलाइन अगर अपलोड नहीं हुई तो माय स्टाफ शुड लुक इनटू इट। प्लीज इनका टेलीफोन नंबर लीजिए और बेटे मेरा नंबर लिखें 0092, हर जगह लिखा हुआ है 310-555598, 310 के बाद 555598। आप मुझे काइंडली उस पर व्हाट्सएप करें 24 घंटे के अंदर, वी विल लुक इनटू द मैटर एंड गेट बैक टू यू। ये दोनों सीरियस कंसर्न्स हैं और मैं देखता हूँ कि किस कंफ्यूजन की वजह से हुई। बहुत शुक्रिया। और एक और सर ये इसमें असल में जो इशू आ रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो फिर अटॉर्नी मैंने पाकिस्तान भेजी है, वहाँ से फॉरेन अफेयर से मैंने टेस्ट करवा के, तो जो रजिस्ट्रार है ना कचहरी में जो होते हैं तो उनके पास भाई गए हैं, तो वो कहते हैं इसके पे एम्बेसी की वो स्टंप नहीं लगी हुई जो थोड़ी जो नहीं इस तरह कागज पे उभरी सी होती है, वो उबार सा होता है, यानी वो जो बगैर स्याही की होती है। बेटे बात तो कॉन्सुलेट नहीं करती ना जी वो पता नहीं वो क्यों, वो 3-4 दफा जा चुके हैं, वो कहते हैं नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो सर लेटर हेड पे नहीं हो सकती ना, लेटर हेड पे नहीं होती। अच्छा ऑफिसर ये पहले जमानों में एम्बॉस होता था, अब QR कोड होता है। वो कोई कचहरी में कोई रजिस्ट्रार साहब हैं जिनको ये पता ही नहीं होगा कि अब वो QR कोड से फोन से सही ये इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने भी भाई को कहा है कि ज़ाहिर बात है वो अगर यहाँ से या तो उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया या उनको ज़ाहिर बात है कि नॉलेज में नहीं है। सब इन्फॉर्म्ड है, कुछ लोग अभी तक पिछली सदी में रह रहे हैं, तो आप अपना ऑफिसर को भेजें, मैं आपके सारे केसेस को आई विल लुक इनटू इट। बहुत अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारी पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। एक और एप्लीकेंट है, शायद देखिएगा। ये चौधरी सजाद अनवर साहब दोबारा बात करना चाहते हैं सर आपसे, प्लीज। मैं सर आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। आपने लिस्ट खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सीजी साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सीजी साहब, चूंकि मुझे पता है कि हमारा कौंसलेट जो है लोकल सतह पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी मसाइल हैं कम्युनिटी को, वो बहुत अच्छे से डील कर रहा है। तो इस इत्मीनान की वजह से मैं एक सवाल ज़रा करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के मुतालिक, कि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी अपना हैं जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं दुनिया के और बड़े मुल्कों के जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो सब मुतहर्रिक हैं और सूरत-ए-हाल को देख भी रहे हैं। और इसमें अपना-अपना वो जो है, हर मुल्क अपने-अपने पत्ते जो है खेल रहा है। कोई बहुत सारी बातें हो रही हैं, किसी ने उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, किसी ने नहीं करना। तो पाकिस्तान इसमें सबसे अहम मुल्क है, हम नेबर हैं उनके। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जैसे कि स्पेन भी एक बहुत अहम कंट्री है यूरोप में, और अमेरिका तो हमसे ज़रा नाराज़ ही है, दूर ही है। तो उसके बाद हम चल रहे हैं, बहुत हमारा लेन-देन है यूरोप के साथ। तो क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कोई हमारे कौंसलेट को या एम्बेसी को गाइडलाइन दी है, स्पेशल गाइडलाइन दी है कि इस मामले पे आप कोई लॉबिंग करें या कोई काम करें? और दूसरा एक और सवाल है, इसके बाद मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बहनों-बेटियों को आगे ला रहे हैं और उनको कम्युनिटी को ये आप बावर करा रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी तरह इक्वल है। लेकिन पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदा हैं, सॉरी टू से, तो ये ज़रा मुश्किल है, शायद मुझे ये सवाल नहीं भी करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूँ। कि जो अभी मैं देख रहा हूँ कि गाइडलाइन आई है कि स्कूलों में जो हमारी फीमेल टीचर हैं, उन्होंने ड्रेस कैसा पहनना है। हालाँकि हमारे ड्रेस तो माशाल्लाह पहले से ही बहुत बेहतर हैं, तो कुछ थोड़ा-सा ना वहाँ जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो शायद जो हमें तवक्को थी उसके थोड़ा थोड़ा हट के जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे भी? जी बेटे, जो अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर मेन रोल मैड्रिड की एम्बेसी का है। और लेकिन जो आपने सवाल पूछा, पाकिस्तान का जो हमेशा से बयानिया रहा है और पॉलिसी रही है, वो हक़ाइक़ दुनिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पे ऐसी चीज़ें की कि वो सच साबित होगी। हम हमेशा कहते थे कि आप पठान इन्वॉल्वमेंट के बगैर, जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव पठान इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक आर्टिफिशियल सतही हुकूमत अफ़गानिस्तान पे इम्पोज़ नहीं कर सकते बाहर से। तो 3.5 लाख की फ़ौज तैयार की, सारा कुछ एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट था, $2 ट्रिलियन ज़ाया कर दिए। लेकिन अफ़गानिस्तान के जेन्युइन लोग, वो स्ट्रक्चर 2 हफ्ते भी कायम ना रह सका। इससे ये बात भी गलत साबित हो जाती है जो आजकल हमारा नेबरिंग कंट्री बार-बार प्रोपेगेंडा कर रहा है, कहीं उड़ते हुए जहाज़ दिखा रहा है, कहीं कोई तमाशे दिखा रहा है। हमें तो, अगर हम इन्वॉल्व भी होते हैं, फ़र्ज़ करें हम सारी बातें मान लें कि जी हमारे ये किया, वो किया, तो यार लड़ाई तो हुई नहीं, कोई मुज़ाहमत तो हुई नहीं उनके सामने। हम तो उस वक़्त काम आते हैं ना, हमारे कोई बुलेट्स और बाकी चीज़ें, कि वहाँ लड़ाई होती। वो इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंगली जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसको लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि किसी लड़ाई की, पाकिस्तान की किसी इन्वॉल्वमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं। और हर जगह बगैर लड़ाई के ये सब चेंज आई है। एक तो ये बात। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट बहुत लिबरल और फॉरवर्ड लुकिंग है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जिसमें आई थिंक इट फोर्स द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सर्टेन थिंग्स, लेकिन इस पे डिबेट चल रही है। जो फीमेल जज हैं उनके ऊपर भी डिबेट चल रही है, हेल्थी डिबेट चल रही है सोसाइटी में। एंड इंशाल्लाह जो उसमें से रिजल्ट इमर्ज होगा वो फीमेल लिबरेशन का और फीमेल इक्वल राइट्स का होगा। और जहाँ तक रिकग्निशन की आपने बात की, तो अभी पाकिस्तान ने क्या है, वो बाकी लोगों के साथ मिल के, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जब वो पता चलेगा कि वो ऑल इंक्लूसिव जिस तरह के कमिटमेंट्स दे रहे हैं वो होंगी, तो फिर पाकिस्तान रिकग्निशन पे फैसला करेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल हेल्प की बात होती है, एक ब्रदरली भाइयों वाली स्टेट की। आपके मुख्तलिफ इदारों के हेड्स वहाँ गए हैं, उन्होंने मुश्किलात पूछी हैं, उनके हल निकाले हैं। आपकी एयरलाइन सबसे एक्टिव फॉरेन एयरलाइन है दुनिया की, जो काबुल से ऑपरेट कर रही है अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल के। तो ये एक किस्म का फॉर्मल रिकग्निशन एक और चीज़ होती है, लेकिन एक ब्रादराना हेल्प वो हम कर रहे हैं।
اور ہم کرتے رہیں گے, اور جب وقت آئے گا فارمیلٹیز کا تو اس میں بھی ہم آگے ہی ہوں گے ڈپینڈنگ آن سرٹن فیکٹرز. آپ پاکستان میں فیمیلز کی, آپ کا سوال بالکل بجا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ کے دل میں ڈر ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ہمارے کرکٹرز باہر جاتے ہیں, ہمارے ایف ایس سی ایف اے میں لڑکیاں لڑکوں کو مار رہی ہیں, میڈیکل کالج کی سیٹیں ساری لڑکیاں لے کے جا رہی ہیں, دیر آر فیمیل پارلیمنٹیرینز, اور اس سوسائٹی میں فیمیل پرائم منسٹر مسلم ورلڈ کی, فیمیل اسپیکر مسلم ورلڈ کی, یہ سب پاکستان ان میں آگے ہے. پاکستان ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے, انشاءاللہ اور آگے جائے گی اور اسٹیبلٹی کے ساتھ رہے گی. نیکسٹ دیکھیے کوئی رہ گیا آفیسر, کوئی اپلیکینٹ ہے جن کو ہم نے نہیں لیا؟ نہیں سر, کوئی اپلیکینٹ ایسے نہیں ہے. میں سب کے مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں, اگر ان میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میسج کریں. لیکن آلموسٹ سب لوگ جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں. اوکے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلی جو اس طرح کی میٹنگ ہوگی اس کا بھی 3 دن پہلے اناؤنس کیا تھا, اس کا بھی 3 دن اناؤنس کریں گے. کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ہوا کرے گی. میں پہلے یہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کونسلیٹ کے دروازے ویسے ہی کھلے ہیں اگر کوئی پروپوزل دینے آئے, لیکن بڑا اچھا بیچ میں وسیم نے بات کی کہ اگر گھر بیٹھے کوئی پارٹیسپیٹ کر سکے تو وہ بہت ہی اچھا ہے, اس کو آنا بھی نہ پڑے کونسلیٹ. تو اس لیے اب ہم نے یہ شروع کیا ہے, اور اس میں فری اور فرینک باتیں کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. جو آپ کے مسائل ہیں ان کو ہماری ٹیم حل کرنے کی کوشش کرے گی اور کرے گی بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے.